Good afternoon, student. I am Abhishek Namdev. Welcome to your Rock Gold Academy classes. So, in last video, we have learnt about the diagonal method to find the square. Now, we will learn a short trick to find a square root, the digit which is ending in 5. Like suppose we have to find the square of 45. This is the tricks only for the digits having 5 in the last digit. Now the trick is you will write the square of 5, that is 25, and for the next digit this is 4. Then you will multiply 4 by 5, the next number of the given digit, that is 5. 4 5 is 20. So the answer is 20 and 25. Like suppose we have to find the square of 65. So what will I do? The square of 5 is 25 and I will multiply 6 by the next digit, that is 7, and 6 7 is 42. So answer is 42 25. Similarly, I have to find the square of 95. So same as the square of 5 is 25 and you will multiply 9 by its next digit, that is 10. 9 10 90. So the answer is 9025. This is just simple. Pause the video and try to do yourself. Now we will study what is square root. First of all, the symbol of square root is this. This symbol means we have to find the square root. Like suppose I have written 25. That means the answer is 5. That means the 5 is the square root of 25. So here we have a lot of method to find the square root. So we will study 4 main method which is in your book. The first method is prime factorization method, जो कि आपको मैंने पहले की वीडियो में थोड़ा सा एक explanation दिया था. Second method is long division method. Third is successive subtraction of odd numbers, and the fourth term is tens and ones method. So let us start with the prime factorization method. यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और ये आपसे हो भी जाए. तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है. द नंबर इज 3844. तो द मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो व्हाट विल वी डू? वी विल फैक्टराइज्ड 2 से फैक्टर किया 1922 टाइम्स, then 961, and 961 is divisible by 31. So the next term will be, I will write all the factors and I will make pairs of factor. So the first pair is 2 multi 2 and the second pair is 31 multiplied 31. तो आपको इन पेयर में से एक एक नंबर चूज करना है. You will write just one number from the pairs. So the first number is 2 and the second number is 31. Now multiply 31 into 2. The answer is 62. Let's do one more question by. So the last digit not even number, so it will not divisible by 2. Let's check it is divisible by it is divisible by 3 or not. 5 into 7, 7 and 5 12, 12 and 6 18. So it will be divisible by 3. 3 1 is 3, 2 26, 3 8 is 24, then 2 3 7 is 21, then 1 3 5 is 15. Again check with 3, 5 and 7 12, 12 and 1 13, 13 and 8 21. It will be divisible by 3 again. 3 3 6 is 18, 7 3 2 is 6, 15 3 5 is 15. Now 5 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25. Again with 5 5 2 is 10,
5 5 is 25, again with 5, 5 5 is 25 and 5 1 is 5. Now the next step is write the factors. The factors are 3 multi 3 multi 5 multi 5 multi 5 multi 5. So the next step is I will make pair, first pair, second pair, third pair, then I will choose only one digit from the pair. So one from here 3, one from here 5 and one from here 5. 5 5 is 25 and 25 3 is 75. So the answer is 75. I hope ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा स्टूडेंट. Now next method is successive subtraction of odd numbers. I have taken question number 1b part from exercise 3.2 and the question is find the square root of 81 by successive subtraction of odd numbers. तो स्टूडेंट्स आपको इसमें करना क्या है, आपको इस नंबर में से कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर माइनस कर देना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए. अगेन आई एम सेइंग you will subtract all the consecutive odd numbers until you get 0 at the end. So the first odd number is 1, so I will subtract 81 minus 1, that is 80. Then 80 minus 3, which is second odd number, 77. Now 77 minus 5, which is third odd number, 72. Now 72 minus 7, which is fourth odd number, 65. Now next number is 9, 56. Now 56 में से 11 माइनस करेंगे, 45. 45 minus 13, आंसर 32. 32 minus 15, आंसर 17. And 17 minus, because the next odd number after 15 is 17. And 17 minus 17 is answer 0. So you will subtract all the consecutive odd numbers until you get 0. Now count the number of operation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी कि आपका आंसर कितने ऑपरेशंस में आया, 9 ऑपरेशंस में आया. सो इसलिए 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया स्टूडेंट्स, 9 हो गया. फाइन. मैं आपको यहाँ पे एक मेथड, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ इसका. सपोज मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है या 49 का 16 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो व्हाट आई विल डू, 16 minus 1, 1 is the first odd number, so answer is 15. Now 15 minus 3, 3 is the second odd number, 12. Now 12 minus 5, which is 7, and 5 is the third odd number. Now 7 minus 7, 7 is the fourth odd number, answer is 0. So you have got 0. Now count the number of operation, 1 2 3 and 4. That means root 16 equals to 4. I hope student ये आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होगी. Now ones and tens method is very interesting and very important method to find the square root. So आपकी ही इसके लिए आपको स्टूडेंट्स ये रूल याद करना पड़ेगा. शायद मैंने आपको एक पहले टेबल बताई थी कि जो नंबर 0 पे एंड होगा उसका स्क्वायर रूट भी 0 पे एंड होगा. जो नंबर 1 और 9 पे एंड होगा उसका स्क्वायर रूट 1 पे एंड होगा. जो नंबर 2 एंड 8 पे एंड होगा वो 4 पे एंड होगा. ये मैंने आपको टेबल बनवाई थी. अगर ये आपको पता है तो ये आप मेथड इजीली कर सकते हो. सो आप ही की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, टेक एनी 2 क्वेश्चन. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इन 1764. So what you will do, it is very interesting and easy. You will make a pair from the last digit. Now that means आपको लास्ट से एक पेयर बनाना है. Now 4, देखो 4 कब आया होगा, ये रहा 4 कब आया होगा, जब लास्ट की डिजिट क्या आ रही होगी 2 और 8. तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे कि या तो ये नंबर 2 का स्क्वायर रूट होगा या 8 का स्क्वायर रूट होगा. जस्ट इतना काम है. नाउ रिमेनिंग जितनी भी डिजिट बची है उसका पेयर बना लेंगे. नाउ अब ये 17 नंबर देखूंगा कि ये 17 नंबर किसके बीच लाई कर रहा है, किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई कर रहा है. तो 17 आई थिंक
17 के पास 16 नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर एंड देन 25 है, सो 25 तो एक्सीड कर गया, तो आंसर इज 16, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये नंबर या तो 42 का स्क्वायर होगा या ये 48 का स्क्वायर होगा। नाउ आपको मल्टीप्लाई करनी है, 42 मल्टीप्लाई 42 एंड 48 मल्टीप्लाई 48, so 42 multiply 42 answer is 1764 and 48 multiply 48 the answer is 2304. Let's do one more question to understand this. Question number 2, B part, and the B part is 1444. So same trick, you will make a pair of last two digit and the unit digit is 4, that means ये नंबर या तो 2 पे एंड हो रहा होगा या ये नंबर 8 पे एंड हुआ होगा। नाउ 14 ही किसके बीच में, किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है, या तो ये 3 के स्क्वायर के बीच में या ये 4 के स्क्वायर के, क्योंकि 9 और 16 है, सो 16 तो एक्सीड कर गया 14 से, सो आप क्या लेंगे, 3 स्क्वायर लेंगे, तो एन यानी कि नंबर 9 लेंगे, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो या तो ये 32 मल्टीप्लाई 30, या तो ये 32 का स्क्वायर का होगा नंबर या 38 का स्क्वायर होगा, तो आपको क्या करना है, 32 मल्टीप्लाई 32 फाइंड कर लेंगे एंड 38 मल्टीप्लाई 38 फाइंड कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। बहुत ही इजी ट्रिक है। आई विल डू वन मोर क्वेश्चन इन द लास्ट, डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज लॉन्ग डिविजन मेथड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सक्सेसफुल मेथड। ये बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट। ये आपको फाइंड कब करना है, when the digit is so large then you will use this method। और आपको करना क्या है इसका सबसे पहला स्टेप है कि आपको लेफ्ट साइड से दो के पेयर बनाने हैं। जस्ट मेक पेयर ऑफ 2 numbers फ्रॉम द राइट साइड, राइट वन, इस तरफ से, यहां से राइट से बनाना, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा एंड द सिंगल। नाउ count the table from the left, and how you will count the table, just 1 1 ja 1, either 2 is 2, 3 multi 3, 4 multi 4, 5 multi 5, 6 multi 6, 7 multi 7, like this। That means you will count the table of square of numbers, not like 2 3 ja, 2 5 ja, 2 10 ja, no, या तो 7 7 या 49 या 6 या 36 या 8 8 या 64 या 12 12 या 144। सो 1 के ऊपर जो टेबल हम काउंट करेंगे वो 1 1 जा 1 होगा, जो कि इसके बराबर इक्वल है। सो यू विल राइट 1 1 जा 1, 1 minus 1 is 0। नाउ यू विल राइट द नेक्स्ट पेयर 53 here, and this one will be added to this one, so 1 plus 1 is 2। now द नंबर इज 53। अब यहाँ पे आपका नंबर 2 आ गया था, दैट मीन्स आपको क्या करना है, या तो आपको 21 की 1 में मल्टीप्लाई करनी है या 22 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप इसके बाद 3 लिखेंगे तो आपको 23 की 3 में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 53 22 2 जा 44 होता है और 23 3 जा 69 होता है, 69 एक्सीड कर जाएगा। सो आई विल राइट 22 2 जा 44। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट, 9 इज द रिमाइंडर एंड आई विल राइट the next pair which is 76, and this 2 will be added to this 22 and the answer is 24। अब यहाँ पे 976 से और मेरे पास यहाँ पे 24 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 241 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, द आंसर इज 241, जो कि नहीं चलेगा। 242 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, आंसर इज 484, ये भी बहुत लेस है। 243 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 729, ये भी एक तरह से लेस है। एंड 244 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 976। सो 244 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 976 आ गया, रिमाइंडर 0। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस। And the question is find the square root of 43264. So I will do again step by step. I will write 4 3
2, 6, 4, and I will make pair from the right side, then the remaining one. Now I will count the table from this side. This is true, 2, this is 4, so 2 to ja 4, remainder 0, next pair 32, and this 2 will be added to this. The answer is 4. Again 4, this is 32. If I write 1 here, it will greater than 32. That means अगर यहाँ पे 41 भी होगा तो 41 1 जा 41, जो कि 32 से ज़्यादा हो जाएगा. तो इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको एक 0 लिखनी है और अगला पेयर उतारना है, और एक 0 यहाँ पे लिख लेनी है. नाउ अब यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 401 मल्टीप्लाई 1, आंसर 401 नहीं चलेगा. सिमिलरली 402 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 2 2 जा 4, 200 2 4 जा 8, ये भी बहुत छोटा है. 403 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 0 3 4 जा 12, ये भी बहुत लेस है. So 407 multiply 7, that is 2849, and this is not equal to 3264. Now 408 multiply 8 by 3264. So I will write 8 here and 8 here, and the answer is 3264. Remainder 0. So the square root of 43264 is 208. This is just simple. Now let's take one more question to understand the whole thing. I have given 3 examples because this is very important. This is very important rule. So ये आपको सभी को आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ. तो सेम अगेन I will write 4761 here, and I will make pair from left side. Now count the table from right side, and now count the table from left. Now 47. तो 47 के आसपास वो कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 6 6 जा 36 and 7 7 जा 49. 7 7 जा 49 जो होगा वो एक्सीड कर जाएगा, तो आपको 6 6 जा 36 इसमें आपको काउंट करना है. 7 minus 6 1, 4 minus 3 1. Now write next remainder, and 6 plus 6, that is 12. Now what I will put, if I write 121, so I will have to multiply by 1, this will be 121. Similarly 122 by 2, so the answer is 2 2 ja 4, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. So now let's check 125 multiply by 5, 5 5 ja 25, 5 2, 5 2 ja 10, and 2 5 1 ja 5. So now let's check 129 by 9. 9 9 ja 81, 9 2 ja 18, 18 and 8 26, 6 2 carry, 9 1 ja 9, 9 2 11. So 129 9 जा 1161. सो यहाँ पे 129 9 जा 1161, रिमाइंडर 0. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज 69. आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा. लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपको ये वीडियो पॉज करके 2-3 बार ही आपको क्वेश्चंस करके देने हैं. नाउ the next method is approximate square root, or find the value of square root up to given decimal numbers. For example, I have taken exercise 3.4 question number 3 under root 3, and ये आपको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल्स के 2 प्लेस तक आपको ये फाइंड करना है. तो आपको स्टूडेंट देखो, जैसे आंसर आपका क्वेश्चन जो है वो केवल 3 है, लेकिन अप टू 2 डेसिमल निकालना है. तो आप क्या करेंगे, आप इसको डेसिमल लगा के 4 डिजिट लिखेंगे. अगर 2 डेसिमल के लिए निकालना है तो 4 0 लगाएंगे. 3 डेसिमल तक निकालना है तो 6 0, जस्ट डबल. अगर अप टू 4 डेसिमल्स तक निकालना है तो आप 8 zeros करेंगे.
यहाँ पे क्योंकि 2 डेसिमल्स तक निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक 2 पेयर बना लेंगे 0 के। नाउ मेक पेयर फ्रॉम राइट साइड 0 0 0 एंड दिस 1। अब 3 के ऊपर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 एक्सीड कर जाएगा, सो 1 1 जा 1, द रिमाइंडर इज 2। नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट पेयर सिमिलरली 25 5 जा 125 हो जाएगा, 26 के 6 में करूँगा 156 होगा, 27 के 7 में करूँगा 189 हो जाएगा, और 28 के 8 में करूँगा तो 224। दैट मीन्स 28 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 224 हो जाएगा, जो कि 200 से एक्सीड करेगा। सो यहाँ पे 27 7 जा 189 चलेगा। सो इसलिए यहाँ पे मैंने 27 7 जा 189। नाउ रिमाइंडर इज 11 एंड दिस 7 विल बी एडेड टू 27, दैट इज 34। नाउ आई विल राइट दिस पेयर सिमिलरली। अगर मैं यहाँ पे 341 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगा 341 हो जाएगा, जो कि 1100 से बहुत लेस है। 342 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 684 होगा, जो कि 1100 से लेस है। 343 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 1029 हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 है। और 344 की 4 में मल्टीप्लाई करी तो 1376 हो जाएगा, और जो कि 1100 से एक्सीड हो जाएगा। तो ये एक्सीड हो गया, ये वाला यहाँ पे काउंट होगा। सो 343 multiply by 3, that is 1029, remainder is 71. You will leave the question because you have to find the answer up to 2 decimals, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकालना है। तो 1.73 is the final answer. Now let's do one more question. The question was find under root 26.885 correct up to 2 decimals. सेम एज 26.885 हो गया, और आपको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स निकालना है, यानी कि पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट चाहिए, और लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट थी। सो आई विल मेक ए एक्स्ट्रा 0 so that I can make a pair. Now make 2 pairs. यहाँ पे काउंट करते हैं। अब 26 के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा चलेगा, 5 5 जा 25, सो 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 1। नाउ आई विल राइट the next pair which is 88. Similarly 101 की 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 101 आएगा, 102 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 402, जो कि 188 से एक्सीड कर जाएगा। सो यहाँ पे 101 की 101 में मल्टीप्लाई होगी, आंसर रिमाइंडर 87 हो गया। नाउ यहाँ पे अब नेक्स्ट पेयर उतारूँगा। नाउ 102 अगर 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1021 आएगा, जो कि 8750 से बहुत लेस है। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करी ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करी ये भी नहीं चलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करी दिस विल नॉट आल्सो वर्क, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करी 5125 दिस विल नॉट वर्क, 1026 मल्टीप्लाई 6 6156 दिस विल नॉट वर्क, 1027 मल्टीप्लाई बाय 7 7189 दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क, 1028 multiply 8 8224, and 1029 multiply by 9, that is 9261, and 9261 is exceed to 8750. so I will take this 8224. so 108 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और 8224 लिखेंगे। रिमाइंडर ये आ गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। और क्योंकि आपको करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स निकालना तो सो द आंसर इज 5.18। अगर ये करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स तक निकालना होगा तो आप एक पेयर और लगाएंगे 0 का, और इसको अभी आगे भी सॉल्व करेंगे।